आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। डी आर मेहता साहब आज हमारे साथ एक टॉक देने के लिए हमारे साथ आए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। आपका शुरू से ही इस एक्टिविटी में काफी इंटरेस्ट है, तो ऑन बिहाफ ऑफ जिज्ञासा फोरम I must say that he has taken a lot of interest in this activity. In fact, he made an offer which we have so far been unable to use. The first time he came to know about it, he and attended. He said, "भाई आप को अगर कोई फाइनेंशियल जरूरत हो तो मैं 1,00,000 रुपए आपको इनिशियली कमिट करता हूँ." Fortunately, unfortunately, we haven't needed that money, but this just shows that his compassion is all encompassing, and he's always committed to working for the welfare of the society and everybody. So we are especially grateful. आप सब लोग आए हैं, मैं बहुत बहुत आपका, जैसे मैंने पहले निवेदन किया, बहुत स्वागत है। जूम की वजह से हम लोग कनेक्टेड रहे हैं पिछले वर्ष, 1.5 वर्ष से, और हर महीने हम ये बैठक कर पाते हैं। और एक इसकी एडवांटेज, बल्कि 2 एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो हमको ट्रेवल में कोई वक्त नहीं गुजारना पड़ता, हम घर से ही बैठे बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिसएडवांटेज भी है, मिलने जुलने में हमको कुछ और खुशी होती है, कुछ जलपान भी हो पाता है, लेकिन अब जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके हिसाब से सभी जगह लोग बाग वर्चुअल मीटिंग्स इंक्रीजिंगली कर रहे हैं। तो वी हैव टू आल्सो परहैप्स अडेप्ट सो लॉन्ग एज दिस थ्रेट ऑफ कोविड कंटिन्यूज। मेरा बस एक सुझाव और है कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग इसको करते जा रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे सेशंस हो पाए हैं। अगर आपकी कोई सुझाव हो किसी टॉपिक के बारे में जिसमें कि लोगों का जनरल इंटरेस्ट हो, तो काइंडली बताइए। और एक्सपर्ट्स कहाँ से हम बुला सकते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, and we'll do our best to find the best possible speakers. Every one of us knows about D.R. Mehta Sahab. He's come in our contact in various ways. So we all know about him, but still there is a lot more. We need to know about it, but Arun Kumar Sahab will formally introduce him. Kindly permit us that privilege, sir. People must know. I mean, there are many things people don't know, and I think they need to know or reminded about. Sir. Thanks, Naren. Friends, it is my pleasure to welcome today a very senior member of our association, Shri D.R. Mehta, to our forum Jigyasa. Shri Mehta is one of us and a renowned philanthropist and does not need any introduction. Yet, some of us may not be aware of all his contributions to the welfare of society, the handicapped in particular. The distinguished career of Shri Mehta started with his joining the IAS in 1961. He served as secretary in important departments of industry, mines, etc. He also served as secretary to the Chief Minister, Rajasthan. While in Government of India, he was Controller of Capital Issues, Additional Secretary Banking in the Ministry of Finance. He was also the Chief Controller of Imports and Exports of the Director General of Foreign Trade in the Ministry of Commerce. Shri Mehta held the important assignment of Deputy Governor of the Reserve Bank of India from 1992 to 1995. Thereafter, he was the chairman of the prestigious SEBI, the Securities and Exchange Board of India, for 7 years from 1995 to 2002. Shri Mehta also studied at Royal Institute of Public Administration, London, and Alfred Sloan School of Management, MIT, Boston, USA.
It is, however, for the humanitarian activities of Bhagwan Mahavir Vikrang Sahayata Samiti Jaipur, for which Sri Mehta is known all over the world. The Samiti was set up in 1975 by Sri Mehta, initially to provide the famous Jaipur foot to the handicapped. Under his leadership, Bhagwan Mahavir Vikrang Sahayata Samiti has emerged as the largest organization for the handicapped in the world, providing artificial limbs, calipers, and other aids and appliances for free. More than 1.8 billion people, maybe the figure has gone up further, have been its beneficiaries so far, including those in Pakistan, Afghanistan, and many other countries. The Samiti, in collaboration with Stanford University, USA, developed a knee joint which was recognized as one of the 50 best innovations of the world and was featured on cover page of the Time magazine in 2009. Shri D.R. Mehta established the Prakrit Bharati Academy, a cultural and literary organization. The Academy has already published more than 300 books, some of which have been reviewed all over the world. He is chairman of Gandhi Smarak Nidhi, Rajasthan, which is a branch of Gandhi Smarak Nidhi at the national level. For his outstanding contribution to the welfare of society, Shri Mehta has been honored by several awards and at national and international levels. In 2008, he was awarded Padma Bhushan by the President of India. Shri Mehta received the Tech Museum Award for Innovation and its use for humanity in Silicon Valley in November 2007. He is also a recipient of the Indian for Collective Action Award, Diwali Behan Award conferred by Dalai Lama, CNBC Award for Social Enterprise, Satpal Mittal Award, and many others. Shri Mehta has also received the Rajiv Gandhi National Sadbhavna Award for his outstanding contribution towards promotion of communal harmony, peace, and goodwill. In 2013, he was conferred with the Rajasthan Ratna by the government of Rajasthan. अब कुछ मेहता साहब रह गया तो मैं माफी चाहता हूँ। कहने की जरूरत ही नहीं थी आपको इतना। Shri Mehta will be talking to us today on something which he has practiced all his life and is very, very close to his heart: compassion and joy of living. Dear Mehta साहब. नमस्कार साहब, सबको नमस्कार। जिज्ञासा फोरम के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया। विशेष रूप से शिशोदया साहब और बिस्सा साहब का बहुत आग्रह था और मैंने एकदम स्वीकार कर लिया, क्योंकि कई मित्रों से आज मिलने का अवसर मिल गया। जूम की मेहरबानी समझिए, कोविड में भी मिल रहे हैं। जो आपने विषय चुना है, कंपैशन जॉय ऑफ गिविंग, मेरे मन का विषय है। मेरे एक मित्र हैं, बहुत सेवाभावी हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या हाल है, अखंड मौज है। इतना प्रभावी ये फ्रेज है, अखंड मौज है, तो वो यहाँ मिलती है हमें। और यहाँ जो आनंद मिलता है, that is not ephemeral, it's eternal, everlasting. मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई मित्र यहाँ भी उपस्थित हैं जिस काम से जुड़े हुए हैं। मैंने बिस्सा साहब का नाम दिया, आर के अग्रवाल साहब का नाम दिया, कुंभट साहब का नाम लूंगा मैं, आजकल बंबई चले गए। सिसोदिया साहब हर साल मदद करते रहते हैं, पधारते रहते हैं, मरीज भेजते रहते हैं। बेन साहब आईपीएस में एक दिन आए, एक लड़के को लेके दोनों पैर कटा हुआ, दिन भर वहां रहे। और मैंने कहा खाना,
खाना तो हो जाएगा। पैर लगे, वो चला, साथ में ले गए। मैं प्रभावित हो गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो क्यों रुके? आनंद नहीं आता तो क्यों रुकते? BL शर्मा साहब हैं, PC पारक साहब हैदराबाद में जो कोल सेक्रेटरी थे, हमारी हैदराबाद की ब्रांच को हेड कर रहे हैं। SK जैन साहब है IPS, वो फिर सतीश मेहता साहब इंडियन फॉरेन सर्विस के एम्बेसडर, बहुत बड़ा योगदान है उनका हमारे फॉरेन कैंप्स में भी। आपको निवेदन करूंगा मैं इस वक्त में याद करना चाहूंगा बीबीएल माथुर साहब को। मैं गया उनके पास, JDA में थे वो कमिश्नर। UDR कैसे आया? मैंने कहा साहब जमीन लेनी है। आप बिलीव करिए, वो और के भटनागर साहब ने उसी दिन मुझे ऑर्डर दे दिया और मुझे क्या कहा कि यार देख, कई उल्टे सीधे काम करते हैं रोज। आज मुझे मन को संतोष है कि एक भला काम कर रहा हूं। उनको याद करना चाहूंगा मैं BBL साहब को। BMBSS क्या करती है, कैसे करती है, उसका क्या प्रभाव होता है, तो मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, से आपको थोड़ा सा आभास होगा। एक सेकंड आपको दिखाता हूं। हाँ साहब, चलिए। ये जैसे अरुण साहब ने कहा कि 2075 बनी, 46 साल पुरानी संस्था हो गई साहब, और कम से कम 100 साल तो जिएगी, उसमें मुझे संदेह नहीं। मैं तो खैर चला जाऊंगा। चलिए आगे। ये पेरेंट बॉडी ऑफ जयपुर फूड। जयपुर फूड डेवलप हुआ SMS में। मास्टर रामचंद्र शर्मा थे, उनका आइडिया था, पहला प्रोटोटाइप बनाया। डॉक्टर सेठी साहब, डॉक्टर कांसीवाल साहब, डॉक्टर रावत साहब सब जुड़े, और फाइनल प्रोडक्ट जो डेवलप हुआ वो 68 में हुआ, पर संभव चला नहीं। मतलब 75 में ये संस्था बनाई तो 7 साल में 50 पैर भी नहीं बन पाए, क्योंकि इस काम में टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ वैल्यू सिस्टम चाहिए आपको, आपके साथ मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, फंडिंग चाहिए, पैशन चाहिए, लीडरशिप चाहिए, और फिर चला। और आप आश्चर्य करेंगे, अगले 7 साल में 10,000 पैर लग गए, और अब 1 साल में, नॉर्मल ईयर में, पैर 31,000 पैर 2019-20 में लगे, और 4,000 पैर विदेशों में लगे, 35,000 पैर। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि दुनिया में कोई 2,000 पैर नहीं लगा सकता। दुनिया की बात कर रहा हूं, कोई एक संस्था, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, दुनिया की मशहूर संस्था, 100 साल पुरानी संस्था, 14 कंट्रीज में काम करवाती है 20 संस्थाओं के द्वारा। टोटल क्यूमुलेटिव इफेक्ट है उनका, नंबर है बेनिफिशियरीज का, पैरों का 4,800। इंटरनेशनल रेड क्रॉस से भी 7 गुनी बड़ी है, तो 7 गुनी बड़ी है। दिल्ली में आपको आश्चर्य होगा, सारी दिल्ली की सब संस्थाओं को ले लो, इंक्लूडिंग एम्स, नाम नहीं लूंगा और किसी का, मिलके 2,000 पैर नहीं बना सकते। ये हालत मुंबई की है। तो इतना व्यापक हो गया काम, और फिर उसके साथ कैलिपर्स, व्हील चेयर, हैंड पेडल ट्राइसिकल, क्रचेस, और लेटली हियरिंग एड जोड़ दी। तो आप आश्चर्य करेंगे, टोटल नंबर आपने अभी फरमाया 18 लाख कुछ, अब करीब 20 लाख हो रहा है। इस साल के आखिर तक, कोविड नहीं होता तो पिछले साल ही हो जाता। इतना व्यापक काम हो गया। आगे चलो आगे चलो। हिंदुस्तान में इतनी व्यापक समस्या है। अब आज भी हम जो कर रहे हैं तो बहुत एक मिनिस्क्यूल काम है देश के लिए, और बढ़ना चाहिए। और संस्थाएं हैं, हम तो सबको देते हैं, जो लाओ टेक्नोलॉजी ले जाओ, उनको ट्रेनिंग देते हैं। चलो आगे चलो। ये आपको पता है, पैर ये लगाते हैं, इकोनॉमिक थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं। अब देखिए ये असर, देखिए आप, ये आदमी चल रहा है साहब, दोनों पैर कटा हुआ, अभी डेथ हो गई इसका। हमारा वर्कर था, पेशेंट की तरह आया, बगैर लकड़ी चलता है, और पैर बनाता था दूसरों के। चलो आगे चलो। ये प्रोडक्ट है साहब, बिलोनी लिम्ब, बाउनी लिम्ब, ये जॉइंट आप जो मैंने निवेदन किया, ये। चलो आगे। ये फुट पीसेस बनाते हैं साहब, ये स्पेशलिटी है।
और इसकी ब्यूटी है साहब के इसमें एंकल पे मूवमेंट है, डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसमें साइड में भी थोड़ा मूवमेंट है। आप आश्चर्य करेंगे सुनकर, वेस्टर्न डिजाइन अमेरिका में एक पैर की कीमत है $10,000, 7 लाख रुपए से ज्यादा, कंपेरेबल कह रहा हूँ, उसके ऊपर वाले भी हैं। आप बिलीव करोगे उसमें मूवमेंट ही नहीं है। हमारी कीमत है $70, मतलब आप समझिए कितना गुना हुआ सर, 7,000, 100 गुना महंगा है, 1000 गुना महंगा, और मूवमेंट नहीं है। अब आप सुनिए, इसका महत्व समझिए। आज गांव का आदमी आता है, आप सोचिए विकलांग कौन है, थोड़ा सा सोचिए, देखिए आपने, थोड़ा गहराई से सोच रहा, खेत पे काम कर रहा, बीमारी हो गई, सांप काट गया, खान में काम कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर है, पैर कट गया, ड्राइवर का पैर कट गया, 15,000 तनख्वाह मिल रही थी, उसके बाद 0 हो गई, कैसे खाए, बच्चों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। उसको अगर आप ये पैर दें, अच्छा वो ज्यादातर गांव के लोग हैं, शहर के भी है, पर कितने लोगों के घर में कमोड्स है, टॉयलेट तो हो गए, अब कमोड कितनों किया, तो टॉयलेट कैसे करेगा। और बहुत एक दृष्टि से छोटी चीज और दूसरी दृष्टि से मतलब गोइंग टू टॉर्चर इज ए डेली टॉर्चर। जयपुर फुट एड्रेस करता है, इससे भाग सकता आदमी, अभी आगे देखेंगे आप। और ये अब इसमें ISI मिल गया हमको, एक ही फुट है जयपुर हिंदुस्तान में, इसको ISI मिला हुआ है, और इतना रिगरस है साहब टेस्टिंग, कभी आप आके देखो। चलो नेक्स्ट, अब ये लड़की है, चलो ये MIT का आपने बताया, MIT मैं गया वहां, लेक्चर के लिए बुलाया, मैंने पूछा कितने नोबेल लॉरिएट्स हैं यहाँ। ये 5 साल पहले की बात है, 80, हिंदुस्तान में 8, 110 साल में, और वहां एक संस्थान में 80, और उस संस्था का प्रोफेसर ही आया, हमने नहीं बुलाया कि MOU साइन कर लेंगे, 2 प्रोजेक्ट वो ले रहे हैं। हमारा ये भी उद्देश्य है, गरीब को कोई चीज दो, सारा काम सारा निःशुल्क है साहब। 20 लाख लोगों में से एक आदमी से 1 रुपया नहीं लिया। अरे गरीब आदमी है, लोग कहते हैं कुछ चार्ज करना चाहिए, और मैंने कहा चार्ज करेंगे तो इनके पास तो पैसा ही नहीं है। मेरे पास जो लोग आते हैं जयपुर में, मान लीजिए 100 लोग आए, 100, 150 लोग आए रोज, 15-20% लोग तो ऐसे हैं जिनकी जेब में 10 रुपया नहीं है। उससे कहेंगे साहब 5,000 रुपया अभी हमारी कॉस्ट करीब 5,000 रुपया है, रुपया दो। आप क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास पैसे निकलो। अरे संस्था क्या है को बनाई, दुकान चलाई, संस्था बनाई है। कहते हैं आप सस्टेनेबल नहीं हो, केलॉग यूनिवर्सिटी ने कहा यू आर नॉट सस्टेनेबल। I said, Professor, you are a great management guru. You must have advised Fortune 500 countries with your great advice. Tell me, how many of them survived for 30 years, 40 years? Where is Enron? Where is WorldCom? तो हमने कहा भी देखो, हमें पैसा मिलेगा, गरीब को मदद करो, मुफ्त करो, पैसा आएगा, और आ रहा है, कभी नहीं आया, उधार ले लिया, रुका नहीं काम, चलिए आगे चलिए। अच्छा हाथ का अभी काम कर रहे हैं साहब, सांता क्लारा यूनिवर्सिटी, तो स्टैनफोर्ड, सांता क्लारा, MIT के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़े से आपको, अब ये चलिए लड़की अफ्रीका में कैंप किया, वहां की। चलिए अब ये लड़का जो है विनोद रावत, मुंबई में हमारा टेक्नीशियन है, पैर कटा हुआ है, ये 14 हाफ मैराथन 21 किलोमीटर के मुंबई में भाग चुका है। ये इसकी जयपुर फुट की वर्सेटिलिटी देखिए आप। चलिए देखिए, अल्टीमेट है ये स्केटिंग। चलिए ये जापानीज लड़की आई 4, उनके पैर लगाए, एथलीट थी। चलो क्या हुआ, अब ये देखिए, आया एक दिन में पैर लगा,
दुनिया में कोई 3 हफ्ते से 3 महीने के पहले कोई पैर नहीं देता। हमारे यहाँ सुबह और शाम तक टेक्नोलॉजी ऐसी है। शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा कि हॉस्पिटल में डेवलप हुआ, सबका इनका योगदान था। हमारी सब हॉल ऑफ फेम में चारों की फोटो में लगी हुई है और किसी की फोटो नहीं है वहां। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुए इसमें, वो महावीर विकलांग के अंतर्गत हुए। हमारा इन हाउस होती है रिसर्च, ये फॉरेन जो मेजर वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन हैं। मुझे आप एक संस्था तो बता रहे हो, उसके MIT और स्टैनफोर्ड साथ हो, कंपनियों के लिए भी मुश्किल है और सब फ्री। आप सुनिए आश्चर्य, MIT से कोई काम कराओ तो $1 मिलियन मांगेंगे आपसे, हमारे यहाँ फ्री, और चला के आते आगे। सॉरी, वापस चलो। पेड़ पे चढ़ जाए, जो आपको बता रहा है फ्लेक्शन, ये देखिए इस घुटने पे, उस पे, पैर पे, एंकल पे दौड़ता है। हमारे कुछ वर्कर्स हैं 1 किलोमीटर 4 मिनट। आपने पिटोरियस का नाम सुना, पिछले ओलंपिक्स में, इसमें नहीं, अगली पिछले में वो दौड़ा, सेकंड आया। तो पैर था क्या उसका? उसका तो ब्लेड थी, रॉकर था। उसको भी कहा कि ये जयपुर फुट का ये पैर लगा हुआ है, तो बात ही गलत थी। चलिए, अब ये जयपुर नहीं है, आप देखिए ये मुड़ता है। अब उन्हीं की सीरियस प्रॉब्लम है। मेरे एक पाकिस्तानी अमेरिकन फ्रेंड है, JP मॉर्गन बैंक के वाइस चेयरमैन, पैर कटा हुआ, अब मित्र हो गए बहुत। वो आए, जयपुर बुलाया 2 बार मैंने कहा इमरान साहब बताओ पैर किसका अच्छा है? तो भाई ईमानदारी से पैर आपका अच्छा है। आपने कितने रुपए दिए? अब नहीं है वो तो इंश्योरेंस कंपनी ने दिए उनको। कितने दिए? $70,000। आपकी क्या कीमत में? $70। फिर भी पैर अपना अच्छा। और ये तो बहुत रिमार्केबल है साहब। टाइम मैगजीन अगर ये कहे, हिंदुस्तान का एक तो प्रोडक्ट बता दीजिए आप जो उसमें आया कभी। चलिए आगे चलिए। और हमारा जॉइंट वेंचर था सर, 14 बार उनके लोग यहाँ आए। हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर माथुर, डॉक्टर पूजा मुकुल, डॉक्टर जैन, सबकी बराबर चर्चा होती रही। हमारे लोग यहाँ फीडबैक लिया, आके देखा। अब ये देखिए दोनों पैर कटा हुआ है, दौड़ता है। वापस चलो, चलिए। मैंने तो कहा अमेरिकन से, मैंने कहा आप एक काम करो, आपके तो हमारी बहुत अच्छी लिम्स है, अच्छा एक इंडिपेंडेंट जज को अपॉइंट करो और ये काम करवा दो, तो उकड़ू बिठा लो। अभी पैर की बात कर रहे हो तो पैर से तो बैठता ही है ना, नॉर्मल पैर से। तो जो आर्टिफिशियल लिम्ब है वो तो एग्जैक्टली इट मस्ट मिमिक दैट। उसके बाद पेड़ पे चढ़वा लो। एक भी काम कर ले तुम्हारा आदमी, नॉर्मल उनका सेट फुट होता है, उसमें मूवमेंट ही नहीं है। फिर जूता पहनना जरूरी है उसमें। पाकिस्तान में गया मैं तो कसूरी साहब, अरे भाई जयपुर फुट क्या करेगा? मैंने कहा साहब इजाजत दें तो कड़वी बात कह दूं। बोलो। मैंने कहा आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान के मुस्लिम डेप्यूटी का क्या हाल कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा साहब वो मस्जिद में जूते पहन के नहीं जा सकता, तो बाहर रख दिया आपने। और अगर चला भी जाए तो उखड़ू नहीं बैठ सकता, क्योंकि डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं है, मूवमेंट नहीं है एंकल पे। तो नमाज कैसे पढ़ेगा? तो ना तो नमाज पढ़ सकता है ना मस्जिद में जा सकता है। आपने मुसलमान को मुसलमान नहीं रखा। ओ ही वाज हिट लाइक ए बुलेट। वीजा मिल नहीं रहा था सर, 1 हफ्ते में वीजा मिला। ये इम्पैक्ट है आपका। ये देखिए, चलो आगे चलो, ये आगे चलो। ये इराक में साहब 2 कैंप किए साहब इराक में। देखिए उनके स्माइल जो है, जॉय की जो बात सिसोदिया साहब आप फरमा रहे हो, इससे ज्यादा क्या जॉय मिले आपको? उनको तो फायदा हुआ ही। आगे चलो। सुधा चंदन, एक पैर कटा हुआ है साहब, इतना विगरस डांस करती है आप अंदाज नहीं कर सकते हो। शी इज आवर ब्रांड एम्बेसडर। चलो, कॉस्ट का मैंने आपको बता ही दिया। चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट क्या है साहब? बिल गेट्स का इंडिया में ऑफिस है, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। अखबार में आया कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस है बंबई में 62%। अफगानिस्तान गया मैं 5 बार। नॉर्मली वहां जो एनजीओ काम कर रहे थे, तालिबान गिरा था उस वक्त, अब तो वापस आ गया। 70 to 80% सेल्फ सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन हो गए। हमारी कॉस्ट है 2.76। सीके प्रहलाद ने स्टडी किया, उन्होंने किताब लिखी, फेमस किताब फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड।
इसमें 4% 2002 की बात है, आज वो हो गया 2.76%। एक साल में हमारे 90,000 आदमी आए 19-20 में। कोविड की वजह से थोड़ा कम हुआ नंबर, नॉर्मली अभी 90 से 1 लाख आदमी की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे चलो। ग्लोबल में ये थोड़ा पुराना है, 85 कैंप कर दिया हमने 36 कंट्रीज में, 35 कंट्रीज सॉरी। कौन कौन सी? अभी 1.5 साल पहले मैं सीरिया गया था, इराक में कैंप किया सेकंड, पाकिस्तान में 2 कैंप किए, फिर परमानेंट सेंटर खोल दिए। आप आश्चर्य करेंगे, कराची का जो सेंटर है कुछ 10 साल हो गए, वी आर पार्टनर्स, टेक्निकल पार्टनर्स। 10 साल बुलाया मुझे, मैंने कहा भाई वीजा आप क्यों परवाह करते हो, आदमी आएगा दस्तखत कर देना। गया 30 मिनट में बगैर हाई कमीशन गए हुए वीजा मिला। फिर 1 हफ्ते वहां गया, आप बिलीव नहीं कर सकते, रिसेप्शन अफेक्शन। कराची सेंटर ने 25,000 लोगों के अब तक पैर लगा दिए। द मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडियन प्रोडक्ट इन पाकिस्तान इज जयपुर फूड, और नाम लिखा है हासवाब, रोटरी क्लब कराची एंड BMVSS जयपुर फूड जयपुर। मैंने कहा भाई पूरा नाम लिखो हमारा। कह रहे साहब इतनी तो मेहरबानी करो, भगवान तो मत लिखवाओ पाकिस्तान में। और उसका क्या हुआ साहब, गवर्नमेंट इंडिया ने इतना पसंद आया, और हमारे सतीश मेहता साहब हैं एम्बेसडर, उनका बहुत योगदान था इसमें। उन्होंने कहा कि आप पहले भी कुछ किए, सपोर्ट कैंप किए, 8-10 कैंप किए। उन्होंने एक इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम बना दिया था और कहा सारा फंडिंग हम करेंगे। तो पिछले 3 साल में हमने 14 कैंप किए 13 कंट्रीज में, और 4-5 कैंप सब वापस शुरू करने वाले हैं। और इतना इम्पैक्ट है साहब, अरे हिंदुस्तान तो भले लोग हैं, और उसका असर कितना होता है साहब। इंडोनेशिया का मुझे याद है, एक बुढ़ा आदमी 80 साल से ऊपर का, पैर लगा, 20 साल पहले पैर कटा। वो भाषा उनकी मैं नहीं जानता, वो मेरी भाषा नहीं जानते। उनके लड़के ने इशारा किया, मैं गया, मुझे इशारा किया नीचे बैठो, बैठा, सर पे हाथ रखे था। ऐसी ब्लेसिंग कौन दे सकता है ऐसा? शायद मदर देती या फादर देते। और ऐसे मतलब आप कह रहा हूँ हर रोज कुछ न कुछ। पाकिस्तान में गया, एक आदमी दोनों पैर कटे हुए आया, मैंने पूछा भाई, थोड़ा डिटेल पूछी, मुझे लगा झूठ बोल रहा है, लग गए पैर। 2 दिन वही था, तीसरे दिन आया कि साहब मैं सच नहीं बोला। मैं बोल दो। खाना खा रहे थे, वेजिटेरियन खाना किया हमारे लिए, सब रोज खाना वेजिटेरियन, पेशेंट का भी वेजिटेरियन होता था। तो साहब मैं तो फौज का आदमी था। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ा, क्योंकि मुझे डर था कि आप पाकिस्तान की फौज के आदमी का लगाओगे नहीं। फिर बोला साहब उससे भी आगे बात बताऊं आपको, मैं तो कारगिल में लड़ा आपकी फौज के साथ। फिर बोला कि साहब आपकी तोपों ने मेरे पैर उड़ा दिए। पीछे अखबार वाला बैठा था, उसने नेक्स्ट डे लिखा था, लुक एट दीज इंडियंस, दे चॉप्ड ऑफ हिज लिम्स and now they have provided him with limbs. Now would it not be a matter of great joy? आगे चलो। ये यूएन में एक 50 साल जयपुर फूड के माने थे, इनवाइट किया था, तो अपने इंडियन एम्बेसडर थे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था। चलो आगे चलो। ये देखिए, इट्स एन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, हाईली इनोवेटिव, कंटिन्यूअस इन हाउस एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च। आपको बताया फंक्शनली एंड कॉस्मेटिकली क्लोजेस्ट टू ह्यूमन लिम्ब, नो लिम्ब कैन मैच इट। हालांकि सारी ये फॉरेन कंपनी बहुत नाराज हमसे, 1 लाख रुपया चार्ज करता है, मुफ्त लगता है, सारे बिजनेस खत्म हो गए उनके। तो फिर ये कहते हैं हिंदुस्तान में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ज्यादा महंगा और समझते हैं क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। क्या चलिए, ये वॉकिंग, स्क्वाटिंग, रनिंग सब, और जब मैंने आपसे कहा कि 1 या 2 दिन बना देते हैं, एक्सट्रीमली फ्रूगल, कॉस्ट आपको बताई 70, और वो भी फ्री। जो भी खर्चा होता है, आज तक 20 लाख लोगों से हमने 1 रुपया नहीं लिया, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया। एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड लिम्ब इन द वर्ल्ड, एंड बोथ यूज्ड नेशनली एंड इंटरनेशनली, और स्पेशली हेल्थ केयर मॉडल। दूसरा क्या किया साहब, एवरीथिंग इज पेशेंट सेंट्रिक।
कोई रिजिड सिस्टम नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, जस्ट वॉक इन, ओपन डोर पॉलिसी। फॉर्म कोई नहीं भरना उनको, सारा हम भरते, पूरा रिकॉर्ड रखते, फोटो हम लेते, और जाता है एक कागज पे दस्तखत करता है, मुझे पैर मिल गया, साइकिल मिल गई, मुफ्त में मिली, बाकी कुछ नहीं उसको। गरीब आदमी डरता है फॉर्मल सिस्टम से। चलो, ये था साहब, हमारा मोटो है जयपुर फुट दैट ऑल में वॉक। तो अब मैं आपको निवेदन करूं, इससे रिलेट करता हूं मैं कि एक मिनट, एक बोबडे साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की बॉडी थी, उसमें मेंबर था। तो लंच के वक्त मुझे कहा कि मिस्टर मेहता, डू मी ए फेवर। आई सेड सर, आई डू यू अ फेवर कि भाई एक काम करो, मैं नागपुर का हूँ, वहाँ एक कैंप करो आप। हमने कैंप किया था, वो आए 18 जज, चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट और 17 जज वहाँ के सब आए, और 1000 आदमी और थे, और सुप्रीम के वो थे, और जस्टिस गवाई साहब थे। ही सॉ एवरीथिंग, 1001 आदमी, जैसे मैंने आपसे कहा। 2 मिनट बोले, क्या बोला साहब वो मैं आपको सारांश बताता हूँ। He made a profound and insightful comment. He said, what human service which I see here means is unusual expansion and elevation of human consciousness. You get elevated. कुछ मैं आपको उदाहरण दूंगा, थोड़ा सा टाइम है, अगर आप इजाजत दें तो। कुछ संस्थाओं का, मैं मेरी गाथा गाली अच्छा नहीं है, कुछ संस्थाएं हैं और कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था। इसलिए किया, दे आर द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर पीपल। दे मे बी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट द सर्विस इज रिमार्केबल एंड टचिंग। और एक राजमल जी की बात करूं मैं, आपने सुना होगा, जिन्होंने आंखों के ऑपरेशन करते थे, कैंप लगाते थे ट्राइबल एरिया में, 3 लाख लोगों के आंखों के फ्री ऑपरेशन किए था। 2 सेट थे कपड़ों के। बिजनेस में जो भी इनका हिस्सा आता, फैमिली दे देती, कम होता और बेच देती। तो एक दिन आए, बंबई में था, सीवी में था, तो छुट्टी थी, बैठे, क्या हाल है मेहता साहब? मैंने कहा बहुत अच्छा है साहब, क्या काम है? उस वक्त, अभी तो 20 हो गए, उस वक्त 10 लाख लोग हुए थे। क्या कीमत है? 3000 थी उस वक्त, 5000 है। कितना बड़ा काम करते हो आप, 10 लाख लोगों को 3000। बहुत खुशी हुई साहब, मेरी तारीफ हो रही है। फिर बोले कि आपको क्या मिलता है? दैट वाज द ट्रैप। मैंने कहा साहब मुझे तो कुछ नहीं मिलता। तो साहब मैं है, बिस्सा साहब हैं, अग्रवाल साहब हैं, सतीश मेहता साहब हैं, सारे ही सब लोग वॉलंटियर्स हैं, हमारे तो ऑफिस बेयर कोई। मैंने कहा हम तो चाय भी नहीं पी सकते, पानी भी नहीं पी सकते समिति का। अभी आपने चंदा दिया 5000 रुपया, और 5 रुपया मैं निकाल दूं चाय का, वो तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया ना सर। वी आर होल्डिंग दिस मनी इन ट्रस्ट। नहीं, पैसे की बात थोड़ी है, और कुछ तो मिलता होगा, नहीं तो काय को संस्था बनाई और काय को इतने सालों से जुड़े हुए हो, कुछ तो मिलता होगा, आनंद मिलता है। कितना मिलता है? वसीम, कैसे मिलता है? एक आदमी दोनों पैर कटा हुआ आया, बिल्कुल मायूस, 2 दिन में पैर लग गए, एकदम प्रसन्न। उसको हम देखते हैं चलते हुए वापस, आप और मेरी तरह, तो आनंद आता है। वसीम है, इसकी क्या कीमत है? अनमोल है। कि मेहता साहब फिर किसको ज्यादा मिला? आपने उस आदमी को 2 पैर दिए 6000 रुपए के उस वक्त, और आपको भगवान ने दिया आनंद, जो असीम है और अनमोल है। तो याद रखो, देने वाले को देने वाले से ज्यादा मिलता है। तो अगेन आई वाज वेरी हैप्पी, मेरी तारीफ हो रही, मैं देने वाला हूँ। फिर धीरे से पूछा कि आपका बजट कितना है? तो उसका करीब 15 करोड़ का था, अभी तो 35 करोड़ का हो गया सारे हिंदुस्तान में। 26 ब्रांचेज है हमारी, आधा करीब जयपुर में है। मैंने कहा साहब 15 करोड़,
आप कितना देते हो? मैंने कहा मैं तो सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, देता जरूर हूँ, पर तो मिनिस्कुल का भी फ्रैक्शन नहीं है। उससे भी धीरे बोले, फिर तो आप तो देने वाले भी नहीं हो, फिर तो आप देने वाले भी नहीं हो। तो ये पाठ पढ़ाया साहब गीता वाला कि काम करो तो निष्काम भाव से करो। ये कभी हम मत लाना कि आप दान किसी ने दिया, पैर किसी को मिले, आप तो माध्यम हो, इससे आगे क्या हो आप? कहा नहीं, और परोक्ष रूप से मुझे समझा दिया। और बताऊं आपको एक उदाहरण और दूं। अपना घर का नाम सुना आपने? अपना घर, भरतपुर में एक संस्था है साहब, भारद्वाज हैं, दो हस्बैंड वाइफ, उन्होंने शुरू की। मैं आपसे निवेदन करूं कभी आप विजिट करो। मदर टेरेसा से मेरी दृष्टि में उससे भी अच्छा काम, या उसकी तुलना का समझना आप। 6,500 लोग, ना तो 3.5 है, बाकी 36 ब्रांचेस हो गई। सड़क पे पड़ी महिलाएं, स्टेशन के बाहर, सारे दुनिया भर के अत्याचार हो चुके उन पे, मेंटली सिक, उनको उठा के लाते, नलाते, धुलाते, इलाज करते, रखते, और सबको वो भारद्वाज साहब प्रभु जी कहते हैं। ऐसी सेवा नहीं देखी साहब मैंने, आपको निवेदन करूं। हम 5-6 लोग गए, एक अंग्रेज भी साथ था हमारे, देखा 4-5 घंटे रह के, उनके ट्रस्टी थे, हम 5-6 लोग थे। मेरे से रहा नहीं गया, ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूं। मैं झुका उनके पैर छूने को, छूने नहीं दिया। फिर मैंने कहा भारद्वाज साहब, हम समझते हैं हम कुछ काम करते हैं, हमारा काम आपका, आपके काम का 10% भी नहीं है। ऐसी गजब की संस्था था। उसके चेहरे पे आप खुशी देखो, राजमल जी के चेहरे पे आप खुशी देखो, वो जो मैंने आपसे कहा कि नॉट एफिमेरल बट इटर्नल जॉय, चेहरे पे लगता है, और इतने खुश है। That touches, that seeps into their soul and that touches you, seeps into your soul. आपने नाम सुना होगा, एक महेश नारायण जी भारद्वाज थे, चीफ इंजीनियर थे, और एक सीएम अग्रवाल, सीएम माथुर था, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। सब ईगो भूल गए साहब। अल्टीमेट करप्टर ऑफ मैन इज ईगो। जाते बाल्टियों में उठाते सब्जियां, रोटी उठाते सड़क पे, और लोगों को खाना खिलाते, और वो हंसते ही रहते थे। मतलब जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जॉय जो है, गिविंग मीन्स व्हाट? जॉय, एक्सट्रीम जॉय, अनलिमिटेड जॉय, ब्रिमफुल जॉय। वो भारद्वाज साहब बहुत प्रभावित करते थे। हमने उनकी किताब छापी उनकी, वो एक भजन कहते थे, अब वो भी शेयर कर लूँ आप, राम की व्यथा। उनकी किताब में सबसे पहले पेज वही है कि राम नाम तो सब कोई कहता, राम का काम करने वाला कोई नहीं। मुझे खिलाते, मुझे पिलाते, 56 भोग लाते, तो जिसको मैं खिलाना चाहता, मैं पिलाना चाहता, उनको खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं। एक साध्वी है यहाँ जयपुर में, सब समर्पण संस्था है, 40 लड़कियां साथ। 2 लड़कियां, उनके माँ बाप मर गए, माँ कैंसर से मरी, बाप दारू से मरा। लड़कियां वहां भर्ती हो गई 7 साल पहले। अभी 10+2 में साहब उस लड़की के नंबर आए 93%। मैं अंग्रेज को ले गया वहां, मैं किताब लिखवाना चाहता हूँ। छोटी संस्था है, 40 लोग हैं, बच्चियां। उस आदमी को एक ढेला नहीं उसके पास, कोई चावल भेजता है, कोई गेहूं भेजता है, कोई दूध का पैसा देता है, कोई कपड़े का पैसा देता है। सब बच्चियां इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है। उसने बात की, कॉपी देखी, मेरे से अच्छी हैंड राइटिंग है। लड़की से अंग्रेजी में बात की, अंग्रेज ने, ही वाज ऑथर। मिस्टर मेहता, शी कैन बी एन अनाउंसर इन इंग्लैंड और अमेरिका। ऐसी संस्था। उसका चेहरा देखिए आप, और बच्चों को देखिए। 2-3 और मैं आपको इसलिए जानबूझ के कह रहा हूं कि जयपुर में है बहुत सारी संस्थाएं, राजस्थान में है। जोधपुर में सुशीला बोरा साहब ब्लाइंड स्कूल चलाती है, 500 बच्चे और बच्चियां ब्लाइंड, टोटली सारी एजुकेशन कंप्यूटर बेस्ड। एक बच्चा, आप बिलीव करोगे, एक बच्चा अभी अमरचंद मंगलदास, इंडिया की टॉप मोस्ट लीगल फर्म में उसका सिलेक्शन हुआ, ब्लाइंड बच्चे का।
उसका पैकेज है 25 लाख ईयर। वो देखिए आप, कहीं अहम नहीं, सिवाय चेहरे पे खुशी के अलावा कुछ नहीं। एक प्रसन्ना भंडारी है कोटा में, अनाथर चलाती है, ओल्ड एज चलाती है। तो ये सब देवियां हैं साहब। और ये मुझे, मेरे दिमाग में साहब 20 लोगों की एक लिस्ट बनी हुई है, राजमल जी, ये सब ये जिनके नाम लिए कि पैर में छूना चाहता हूँ। छूने नहीं दें वो अलग बात है। एक आदमी जयपुर के थे, प्रेम जी, नाम सुना होगा आपने। हॉस्पिटल में जाते थे, रोज सुबह घर से नॉर्थ वेस्ट से आए रिफ्यूजी बन के, 900 रुपए किराए का आता था। जब अभी कोई प्रॉपर्टी मिल गई, उनके घर भी गया, कच्चा सा मकान। सारे मरीजों से मिलते, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं 4 महीने जयपुर हॉस्पिटल में रहा था। रोज आते थे हवा की तरह, एक चमेली का पत्ता और एक तुलसी का, नहीं, चमेली का फूल और चमेली का पत्ता, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, और जिसको जरूरत तो रोक दो। और वो प्रेम जी जैसा आदमी, कोई दवाई हो, कहीं कुछ पैसे का हाथ ही नहीं लगाते। आपसे रिक्वेस्ट कर दी, मुझे कर दी, उसको कर दी, दवाई, पानी, दूध। और कोई मर जाए अनाश्रित, तो उसको जलाने और दफनाने का काम भी प्रेम जी का। उनके जरूर मैंने पैर छू लिए। बीमार थे, लास्ट डे में, डेथ के 2 दिन पहले मैं मिलने गया उनसे, तो उनको ध्यान नहीं था, मैंने पैर छू लिए। तो ऐसे लोग हैं। तो मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था, इट्स ए केस ऑफ, और लास्ट में 2-3 बात और कहूंगा, फिर मैं समाप्त करता हूं। जैसे गिविंग इज रिसीविंग, लेट्स रिफ्लेक्ट इन सॉलिट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ आवर लाइफ। अकबर इलाहाबादी shakes us with his famous couplet, क्या कहें ए बाप, क्या कारे नुमाए कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। None of us would want to have this kind of a washout life. Indeed, many of the retired servants are already in the social service. Many of them are helping the helpless. But the point for mulling is, are we doing enough? If not, can we augment it? And we will be rewarded with joy, willful joy. And I'll conclude by saying, one of the persons, मैं जैसलमेर में कलेक्टर था, एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर्स मुझे बाद में बताया कि they had given up all hopes. They would say that I would die. I broke my femur. 40 से ज्यादा टुकड़े हो गए, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। 3 घंटे बाद ऑफ फर्स्ट एड मिली, जोधपुर लाए, डॉक्टर ने कहा पैर काटेंगे, बचा लिया, पर 5 महीने अस्पताल में रहा। जितनी यात्राएं हो सकती है, 3rd डिग्री मेथड, सब भुगत ली है। थॉमस प्लेन, फेरेडी करंट के शॉक्स, वैक्स बात जैसे लगता है आराम से वो मेल्ट करके आपके उस पे लगा रहे हैं। उस वक्त ये ध्यान आया, महावीर को पढ़ा, महात्मा गांधी को पढ़ा, एल्बर्ट श्वाइट्जर को पढ़ा, महात्मा गांधी का भजन कुन विसा साहब रोज गाते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाने दे। पीर पराई जानने वाले कौन है? क्या हम नहीं बन सकते? उससे भी ज्यादा पावरफुल एल्बर्ट श्वाइट्जर का है। He is one of my great heroes. वो कहता था कि Lord, let's join the fraternity of those who bear the mark of pain. Let's join that fraternity. Thank you. बहुत बहुत सुंदर आपने बताया, और वास्तव में दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर जो आनंद मिलता है, उससे बड़ी कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही फरमाया, और बहुत लाजवाब काम आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। मैं कह रहा हूँ कि वो सवाल पूछे। हाँ, नहीं, बहुत से होंगे लोग। मैं तो अभी खाली शुरू में आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठा रखा है, और दुनिया भर में इतना ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद ही कोई दूसरा कर रहा हो। कोई नहीं कर रहा है। कोई, जब आपके किसी के प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स?
सर सर मेरी आवाज आ रही है, इजाजत हो तो एक हल्का सा बिंदु निवेदन करना चाह रहा हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। सर मैं नरहरि शर्मा आपका बहुत अनुज से भी अनुज हुआ आपके समक्ष। हम कुछ नहीं आपके सामने। नहीं नहीं छोड़िए ना। हम सब विराजे हैं, पता नहीं कौन कौन साहिबान विराजे हैं, मैं सबको नमन कर रहा हूँ। सर सवाल ये है कि कंपैशन इज बेसिकली इंस्टिंक्ट मोटिवेटेड। अनलेस यू हैव नेचुरल इंस्टिंक्ट्स यू कैनॉट बी compassion. Now the point is how far compassion is influenced by affluence. How far compassion is influenced by affluence. अगर दमड़ी नहीं है जेब में, आपके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो खाली कंपैशन कैसे होगा सर इतना बड़ा लार्ज स्केल पे? So what is more important, natural instincts, whether they generate the compassion, या कि influence भी चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलता। देखिए आपने बात कही सही है कि मनी इज इम्पोर्टेंट. It's a hard reality. Unless you have money, how do you proceed? But the point also is, please understand this, that if you help people, help poor people, help them for free, money would come. It has come. 35 करोड़ रुपया कहाँ से आता है? हमारे पास क्या इंडस्ट्रिस्ट है क्या पीछे? आप बिलीव करिए, मैं आपको नाम बताऊं, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, उनकी टीम आई, हमने बुलाया भी नहीं और आपने अप्लाई नहीं किया. अब मैंने कहा हमारा महावीर नाम वो मुस्लिम देगा कि नहीं देगा. अप्लाई किया, आप बिलीव करोगे, बगैर कहे 3 साल का पहले दिया 3.5 करोड़ रुपया हर साल. हमने नहीं मांगा. अभी 3 साल खत्म हो गए. उनकी टीम आई कि बोर्ड में तय हुआ कि अरे भाई ये तो बहुत कम किया, 5-10 साल का करो. और आप बिलीव करोगे, 35 करोड़ हमारा खर्चा बहुत है, 35 करोड़ के अगेंस्ट में 10 साल में वो 63 करोड़ रुपया दे रहे हैं. आप कह रहे हो ये है कि एक्ट ऑफ फेथ होता है शुरू में, बट काम कभी भला मदर टेरेसा का काम रुका है क्या कभी? साध्वी का मैंने आपको बताया, एक ढेला नहीं है उसके पास, कपड़े पहनने खरीदने का पैसा नहीं है, और 10 साल से संस्था चल रही है. ऐसी गजब की संस्था है. तो ये तो जो है ना साहब, एक बार आप घुस जाओगे इस काम में, आपको स्वतः ही उत्तर मिल जाएगा इसका. मनी इज इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्योरिटी ऑफ एक्शन, योर क्रेडिबिलिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ दैट. नो ऑफिस बेरर शुड be appearing to taking even 1 rupee advantage. तो credibility, of course it takes little time, but social work में जैसे घुसे आपको अंदाज हो जाएगा कि पैसा इनमें सबसे नीचे आता है. You need workers. चलिए सर नमस्कार साहब, अनिल सुराना बैंगलोर से बोल रहा हूं. बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के, एंड ऑफ कोर्स हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं. आपकी वजह से हमको भी एक मौका मिला है ये सेवा करने का. मगर आपके शुरू से कैसे शुरू हुआ अब तक का सारे हिस्ट्री मालूम है. मेरा एक ही क्वेश्चन है, ओवर ए पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स, व्हाट कीप्स मोटिवेटिंग यू ईयर आफ्टर ईयर? जैसे हम लोग तो एक आध कैंप करते हैं और छोटा सा एक सेंटर बैंगलोर में चला रहे हैं, तो जो लोग हैं उनकी हंसी देख के, जैसे आपने बोला, हमको मोटिवेशन मिलता है. मगर इतने साल, एंड अभी तो आई वुड से आपका ऑलमोस्ट 24/7 चल रहा है. ऐसा कोई तो लम्हा ऐसा भी होगा जहां कभी लगता होगा कि शायद अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, कब तक करता रहूंगा? मैं आपसे कहा, मैं इतना परम भाग्यशाली हूँ. हर रोज, अभी तो थोड़े कम है, अभी 70-80 आते होंगे, हर रोज 100-150 मरीज से आप मिलो, गरीब से गरीब मिलो, हर रोज उनके चेहरे पे खुशी देखो. तो उससे बढ़िया क्या मोटिवेशन साहब. एक दिन मैं नहीं जाऊं, ये कुंवर साहब आ गए, इनको मालूम है, ये भी शुरू से साथ थे, तो ऐसा लगता है कि आज कुछ खो दिया. एक दूसरा, कई बार देखिए ये पेशेंट जो हैं, ये साइकोलॉजिकल केसेस भी होते हैं. बिस्सा साहब से मेरी एक बहस होती है, कई शराब भी पीते हैं इनमें. वो कहता है शराब पीता है बिस्सा साहब. अरे मैंने कहा मेरी उंगली कट जाए, मैं शायद शुरू कर दूंगा शराब पीना. दुख है तो उसके ऊपर
पर पॉइंट ये साइकोलॉजी, शॉर्ट पॉइंट आई एम मेकिंग, साइकोलॉजिकल केसेस है, ट्रीट देम एज पेशेंट्स। तो कई बार क्या होता है कि गाली निकालते हैं, अरे आपने तो इसको ये दे दिया, मुझे नहीं दिया। आपको एक बताऊं घटना, सच्ची घटना, टोटली अनएग्जैजरेटेड, 35 साल पुरानी बात। मैं दिल्ली था, हर हफ्ते आता था, बस में बैठ के, फ्राइडे को आता, मंडे को सुबह निकलता, रात को 11 बजे पहुंचता, और मंडे को सुबह 5 बजे निकल के ऑफिस पहुंच जाता सीधा। बैंकिंग में था तो जीवनदीप बिल्डिंग में आया तो एक आदमी, गुजरात का लड़का, उसको एक बार मदद दे दी, आर्थिक सहायता भी दे दी उसको। सेकंड टाइम फिर आ गया, मुझे चाय का सामान और दो, और मैंने कहा दे दिया तुझे, मैंने कहा मेंटली सिक है, दे दो, जान छुड़ाओ। तीसरी बार फिर आ गया, दोगे? मैं नहीं देंगे। तीसरी बार किसी को एक भी नहीं, एक बार भी नहीं देते, और तुझे 3 बार कैसे दे दे? नहीं दोगे? हम चल रहे थे, आप बिलीव करोगे, एक जंप के थप्पड़ लगाई मुझे। तो आप कहते थे कि ऐसी घटना हुई होगी कि लगता हो गया क्यों आए। वो अगर भाव आ गया तो फिर आप सोशल वर्क के काबिल नहीं हो। मैंने ऊपर उसके हाथ रख दिया, मैंने कहा मेरे ऑफिसर्स, दूसरे जो वर्कर्स हैं, और पेशेंट को लिंच कर देंगे, मैंने कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो सामान दिया, आप आश्चर्य करोगे, और खुशी की बात बता रहा हूँ आपको, 35 साल बाद अभी आया वो। आता था बीच में, दाढ़ी बढ़ा ली, कृष्ण नाम था उसका, कृष्णा। मेरे एक आदमी ने पहचान लिया उसको, करिए तो कृष्णा है साहब, मेरे पास लेके आए। तो साहब कि कृष्णा क्या हाल है? कि साहब मैं एक तो माफी चाहता हूँ आपसे उस घटना की। 35 साल बाद माफी मांगे साहब। फिर बोला कि साहब, मैंने कहा कुछ और चाहिए? कहते मैं तो अब साधु बन गया, कुछ नहीं चाहिए। आप समझिए कि इसमें उस वक्त तो ऐसा लग सकता था, अरे ये कहाँ आ गए, या पिटाई के लिए आते हैं क्या? पर आपको ये भी एहसास करना पड़ेगा, 2-3 चीजें जो मैं आपसे निवेदन करूँ कि एक तो उनको ट्रीट करिए एज मेंटली सिक, और सिक आदमी है तो उसको आप थप्पड़ थोड़ी मारते हैं, थप्पड़ मारे तो। और दूसरा ये कि अहम नहीं होना चाहिए, दैट आई सेड इज द अल्टीमेट करप्टर ऑफ मैन। मैं ये कर रहा हूँ, जिस दिन उस भाव में आ गए, खत्म खेल। बताइए साहब। अच्छा, सुराना साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं साहब, हमारा बेंगलोर में इंचार्ज हैं। सर मैं आपके पास उम्मेद जी करके एक आदमी थे, हैं साहब, अभी भी है ना? वो कितना काम करते हैं, मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है। वो जो कह रहे थे ना अभी, नरहरी की पैसा चाहिए, उसके पास कोई पैसा नहीं है, पर वो जिसकी भी सहायता करनी होती आपके पास आता, दूसरों से लेता, सब हर एक की पूरी सहायता करता है। उसके बारे में बताऊं मैं आपको जी। उमेश जैन जो है साहब, वो रोज मेरे से डांट खाता है, और रोज मैं उससे माफी मांगता हूँ। मांगता रहता है, अरे मैंने कहा तुमने जांच की कि नहीं? फिर मुझे लगता है कि ये इस आदमी को मैंने क्या कह दिया। जयपुर के सबसे बढ़िया सोच कुछ नहीं है साहब उसके पास, और कोई टेंशन ही नहीं। उसके पीछे वो स्कूटी पे चलता है, पीछे वो लगा हुआ है उसके एक बोर्ड, उमेश बल जैन टेंशन फ्री। तो बहुत गजब का आदमी है साहब। और हमारा जो सोशल वर्क है, ये आर्थिक सहायता देने का, उसी ने शुरू करवाया साहब। तो हमारे सोशल वर्कर भी ऐसे हैं साहब कई। जी, बहुत इंस्पायरिंग है साहब आपका। नहीं साहब, मैं सर ये आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आपके सामने कंपैशन और जॉय ऑफ गिविंग के बारे में हम लोग तो क्या कह सकते हैं, लेकिन चूंकि नरहरी शर्मा जी ने एक प्रश्न किया था, तो नरहरी जी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार में हम लोग काम करते हैं, 2 तरीके से काम हो सकता है। एक तो कंपैशन से करें, और एक अपना बिल्कुल रूल्स को स्ट्रिक्टली अबाइड करें, और 10 से 5 तक जो काम है उसको करके छुट्टी करें। लेकिन आपका भी ये अनुभव होगा, मेरा तो डेफिनेटली ये है, और लोगों का भी
मैं जानता हूँ होगा, जैसे कई स्कीम्स ऐसी सरकार की चलती हैं जिसमें कि अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो आप गरीबों का और जो बिल्कुल ही असहाय है उनका कुछ फायदा कर सकते हैं। मुझे ख्याल पड़ता है कि अंत्योदय में जैसे एक वक्त ये था जबकि आप उस वक्त रेडिली किसी भी डिजर्विंग व्यक्ति को कोई नौकरी दे सकते थे, कुछ नहीं तो चपरासी लगा सकते थे या कहीं अपॉइंटमेंट दे सकते थे। और ऐसा खैर कोई अपनी वजह से नहीं किया, लेकिन अगर जिसकी भी आपने मदद की होगी और जिसको नौकरी पर लगाया होगा, तो मैंने देखा कि वो अभी तक, जैसे जोधपुर में 2-4 लोगों को मैंने लगाया, अभी भी जयपुर आते हैं तो मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ लोग चिट्ठी भी लिखते हैं कि आपने साहब ये किया और मेरी फैमिली के ये हाल है, और अपनी गाथा लिखते रहते हैं। और मतलब वो लोग इतने अभिभूत रहते हैं। Of course, it was done as part of one's duty, but it was an act of compassion in a indirect way. The point I'm trying to make is कि अगर आपके पास पैसा न भी हो तो भी आप किसी अच्छे काम का एक एजेंट बन सकते हैं, आप उसका एक माध्यम बन सकते हैं और उससे भी आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज ये, जैसे मेहता साहब का काम है, अब मैंने स्वयं देखा है कि लोग इनकी जगह विजिट करते हैं और साथ में एक चेक लिख देते हैं। मेहता साहब मांगते नहीं है, लेकिन वो खुद इतना, तो अगर काम अच्छा सा होता है तो लोग बाग स्वयं उसकी मदद करना चाहते हैं। There is no dearth of such people and they are looking for genuine workers. So I think that can never be an obstruction, of course, initially. और मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आईसी श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। आ रही। सबसे पहले तो प्रणाम कर रहा हूँ मेहता साहब को और सभी को नमस्कार। मैं 1973 से मुझे याद है सबसे पहले मेहता साहब से मिला, उसके पहले भी शायद मिला होगा। हमें पेट्रोल गाड़ी हम शेयर करते थे 73 में सेक्रेटेरिएट जाने के लिए। उस वक्त पहली बार पेट्रोल महंगा हुआ था, 1.25-2 रुपया। मुझे अभी भी याद है, वहां से शुरू करके फिर 75 में मैं भी जीएडी का डिप्टी सेक्रेटरी बना। और आप, मैं जो सेंसस में था तो आपने हैंडीकैप की जो अपने सेंसस की थी वो आपने लिया। तो मैं सिर्फ ये कमेंट कर रहा हूँ कि आपसे प्रेरणा लेकर के फिर मैं आगे जब चला 89 से, तो आपके इस कमेटी में मैं हूँ और आपने कहा कि नहीं हम आपको हटाएंगे नहीं, आप तो चलते रहिए, आप हमारा तो लाइफ लॉन्ग है। तो अब ये प्रेरणा रही और उसके बाद में मैं इनकी प्रेरणा से 87 में या 88 में दूसरे मेहता साहब थे शिवपाल चंद जी मेहता, उनकी 2 लड़कियां मेंटली चैलेंज थी। आपने एक रेफरेंस दिया था, आपका फोन आया, उसके बाद में वो आए मिले तो उन्होंने एक बात कही कि सरकार स्कूल क्यों नहीं खोलती मेंटली चैलेंज के। मतलब सरकार आज नहीं खोलेगी, 10 साल नहीं खोली, और आज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शायद योजना तो है, लेकिन उन्होंने कहा आप खोलेंगे तो मैं मदद करूँ। तो आपकी प्रेरणा से वो स्कूल श्री निर्मल विवेक, हम जिसका मैं 91 से चेयरमैन हूँ, आप उस संस्था में पधारे, चीफ गेस्ट भी आए और आपकी सतत प्रेरणा रही। हमने उसका 25 साल बनाया था, तब चीफ जस्टिस राजस्थान और सुप्रीम कोर्ट जज बनी जस्टिस सिंह भी पधारे और आप स्पेशल गेस्ट थे। तो आपकी सतत प्रेरणा से वो स्कूल श्री निर्मल विवेक चल रहा है और आपकी उस भावना, कंपैशन, वो मैंने अपने तरीके से जिया है और मैंने कोशिश की है कि मैं उस पर कुछ जो कर सका, उसमें निश्चित रूप से आपकी प्रेरणा थी। दूसरे श्री भंवरलाल जी शर्मा, लेट मिनिस्टर, वो उनके लिए भी श्रद्धांजलि के जो भी कहे, उन्होंने मेरा नाम देखा और पूछा कि आप अगर जुड़े रहोगे लाइफ लॉन्ग तो मैं जमीन आपको फ्री देता हूँ। तो मैंने कहा आपका हुक्म हो गया, अब जुड़ा ही रहूंगा। तो अब लाइफ लॉन्ग जुड़ा रहा, वो जमीन है और विद्या आश्रम स्कूल के सामने पीछे है, डेयरी के पास में श्री निर्मल विवेक स्कूल, और वो मेंटली चैलेंज बच्चों की है और आज उसमें 150 बच्चे पढ़ते रहे। अभी कोरोना के कारण नहीं है, हमने एक डिप्लोमा कोर्स भी इस बच्चों टीचर्स के लिए शुरू किया है 7-8 साल से। तो मैं नमस्कार करता हूँ। नहीं साहब, मैं निवेदन करूँ, इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स फॉर द मेंटली रिटार्डेड।
तो आपकी कृपा से। मुझे आज भी याद है कि जस्टिस जीएस सिंघवी साहब आए, उन्होंने ये कहा कि दिस द प्लेस ऑफ गॉड। और मैं आपका नाम भूल गया, आप हमारे एग्जेक्टिव में हैं। सर मैं सक्सेना साहब चाह रहा हूँ चेयरमैन सर से, अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अरुण कुमार साहब से इजाजत चाह रहा हूँ सर। हाँ फरमाइए। सर अभी सिसोदिया साहब ने जो बात कही, मैं उनके सामने नमन करता हुआ उनको बहुत एंडोर्स कर रहा हूँ। और हम लोगों ने अपने सर्विस पीरियड में कंपेशन का बहुत ध्यान रखा है, उसका हमें भी बहुत रिवॉर्ड मिला। मसलन डूंगरपुर में जो आदिवासी क्षेत्र है, 75 to 78 जो इमरजेंसी का दौर था, उसमें आदिवासियों की जो सेवा की, तन्मयता से जो सेवा की, सेवा भाव से सेवा की, प्रियदर्शी ठाकुर साहब वहाँ कलेक्टर थे, और साहिबान जो भी यहाँ पे राजे हुए हैं, उन सबका कंट्रीब्यूशन है। वो कंपेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है सर। आपने जो फरमाई, मैं उससे बहुत आदरपूर्वक उसको एंडोर्स कर रहा हूँ। और माननीय डीआर मेहता साहब ने तो बहुत बड़ी मार्केट की बात कही है, कंपेशन तो अंदर से ही आएगा। तो वो तो एक सिलसिला था बात शुरू करने का, उसमें किसी तरह की दो राय नहीं हो सकती। मैं नमन करता हूँ आपको, धन्यवाद के साथ। और कुछ किसी को कहना है? मैं एक ही निवेदन करूंगा आपसे, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि कभी समय मिले, मैंने कहा भी था एक दो लोग संस्थाओं के लिए, जाके जरूर देखिए, आपको आनंद आएगा। आप मदद करें नहीं करें, देखना अपने आप में पर्याप्त होगा। और मैं आपको निवेदन करूं, मैं सबसे पहले मदर टेरेसा आश्रम में गया, निर्मल हृदय उनका, जहाँ डाइंग का वो करते थे। एक गेट से गया और वापस आया दूसरे गेट से, 2 घंटे अंदर घुमा। मैं बाहर निकला, वो व्यक्ति नहीं था मैं। उसका इतना असर होता है साहब। ऐसी पवित्र लोग जहाँ हों, you get ennobled, you get uplifted, and you get inspired to do something. मैं ये निवेदन कर रहा था, कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कर रहे हैं ऑलरेडी। मैं इतना ही निवेदन करूंगा। बिस्सा साहब, बिस्सा साहब कहाँ गए? हाँ बिस्सा सर। और कोई? मैं अरुण कुमार धन्यवाद दे सकते हैं भंडारी? हाँ फरमाएं। पिछले 9 साल मेहता के साथ हूँ, और सर ने जो जो बातें अभी बताई, नहीं, राजेश भंडारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनमें से कई बातों का साक्षी हूँ। और फिर बिस्सा साहब, राजेश भंडारी साहब कुछ कह रहे हैं। भंडारी अपना पहले माइक अनम्यूट कर लीजिए भंडारी साहब। हाँ ठीक है, मेरा आवाज ठीक है। अब फरमाएं। मैं डीआर साहब से बहुत एग्री करता हूँ कि किसी भी संस्था को चालू करने के लिए पैसा होना कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। ये तो आपकी सोच का सवाल है। आज से 20 साल पहले हमारे 3-4 साथियों के दिमाग में आया कि राजस्थान में नेत्रदान का नाम को भी नहीं हो रहा है, जबकि बहुत ज़रूरत है। और इसी प्रेरणा को लेके सिर्फ 5-7 लोगों ने बिना किसी अमाउंट के अपने घरों से संस्था चालू करी। और वो खैर डीआर साहब का तो कोई मुकाबला क्या दुनियावी मुकाबला नहीं है, ये तो बहुत छोटी संस्था उनके मुकाबले में। और ये हमेशा से कहते भी रहे कि तुम्हारा काम तो मुश्किल है, हमारा तो काम है पेड़ पाँव लगा देना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारा किसी से कौड़ियाँ लाना, आँख मांगना, जिन मरे हुए आदमी से उसी टाइम पे लेना, ये एक बड़ा काम है। लेकिन इनकी शुभकामनाओं से, लोगों की शुभकामनाओं से, और हमारे पहले पूर्व मेहता मीठालाल जी साहब जो नहीं रहे, उनकी प्रेरणा से सभी ने ये काम किया। और आज 20 साल से ये संस्था राजस्थान में और हिंदुस्तान में भी एक कम्युनिटी सेंटर के नाम से, कम्युनिटी आई बैंक के नाम से पहली संस्था हिंदुस्तान में चालू करी, जो अस्पताल में नहीं खाली जनता के साथ काम करती थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस तरह की भावना में, और हमारी संस्था में एक भी पब्लिक का आदमी नहीं था, सभी सरकारी संस्थाओं से रिटायर हुए थे अधिकतर, और उन्होंने बड़ा योगदान दिया। तो मेरी तो खाली आप लोगों से यही है कि ऐसे काम किए जा सकते हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं, जैसा डीआर साहब ने फरमाया। थैंक यू वेरी मच। मैं निवेदन करना चाहूंगा,
आई बैंक जो है इंडिया की बेस्ट सोसाइटी आई कलेक्शन के लिए। और आप देखिए, मैंने ईगो की बात कही, भंडारी साहब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रहे, ML मेहता चीफ सेक्रेटरी रहे, PL शर्मा साहब सेक्रेटरी गवर्नमेंट में रहे, किसी की डेथ हो गई, उस वक्त वहां जाके आप आंखें मांगो, सारा ईगो खत्म हो गया वहां। इसीलिए है संस्था। और कितने लोगों को आंखें मिल गई। मैं आपने कहा ना कि आंख जिसको मिल जाए साहब, पैर लगना तो पैर नहीं तो लकड़ी उससे चल जाएगा आप बैशाखी से, आंख देना तो उससे बड़ा काम है साहब। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। इवोल्यूशनरी ग्रोथ जो है, एक जो खास बात कह रहा था कि अगर आप सोचें एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाए और एक साथ शुरू करें इंडस्ट्री की तरह, start in a small way. We started 59 limbs and now we have 95,000 cases. To start in a small way, as you proceed, test the ground, more people would see you and they would help you. So on one hand, the resources would increase, on the other hand, your work would increase. This is the way of going ahead. सर मैं ललित माहेश्वरी रिटायर्ड IPS अभी जस्ट 2 साल पहले रिटायर्ड हुआ था। निवेदन करना चाह रहा था। सभी सीनियर्स को बहुत बहुत प्रणाम। सर मैं भी आपकी संस्था से 2-3 घंटे रोज देना चाहता हूँ। आइए, बिल्कुल आइए, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। एक बात आपसे कह दूं, सुनिए आप, मैं वो भी एक बता दूं सर। कई मेरे मित्र आए कि हम काम करना चाहते हैं सर, तो वो ईगो नहीं छोड़ते। आप सुनिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं सर बिल्कुल सही। अरे आप सुनो तो सही। हफ्ते 10 दिन मैंने कहा क्या करें काम में, आप देखो थोड़े पूछे कि क्या कोई स्टेटस क्या होगा हमारा। स्टेटस से अगर आए तो फिर मत आइए, आपकी बात नहीं कर रहा। और मैं आपको मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि 3-4 बार ऐसे हुआ, बहुत सीनियर लोग आए, भले लोग, मैं इज्जत करता हूँ उनकी, पर सबसे पहले के आते ही हमें स्टेटस दो। अरे यू प्रूव योर क्रेडेंशियल्स। कितना आप मैं उमेदमल जैन को पहले बनाऊंगा कि आपको पहले बनाऊंगा? ये मैं निवेदन कर रहा था। आवाज सर आदरणीय DR मेहता साहब से पिछले 9 साल से मैं उनके साथ कार्य कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि सारी बातें आपने बताई। एक बात जो हमेशा आप कहा करते हैं, शायद वो रह गई, मैं इजाजत से कह देता हूं। पाकिस्तान के कैंप की बात आपने बताई कि एक आर्मी ऑफिसर के जब पैर लगाया तो उसने कहा कि जो घटना हुई। एक बात जब आपने जो बताया था कि एक जूतों की दुकान पर पाकिस्तान के कैंप के बाद आप गए, अपने किसी वर्कर को जूते लेने थे और आपको देख करके और उसने बताया कि आप तो वो हैं जो यहाँ पर पैर लगाने आते हैं। आपने कहा वो हैं। अब आपसे क्या पैसे लेने हैं? आपको ये जूते चाहिए, आपको और चाहिए तो और लीजिए। ये दोनों देशों में आपसी सॉलिडरिटी कैसे बढ़ती है, सद्भाव कैसे बढ़ता है कि आर्मी ऑफिसर की घटना से और इससे प्रकट होता है। ऐसी ही घटना मैं आपके साथ था नागपुर में, वहां पर भी हुई और लोगों ने पता नहीं क्या क्या कमेंट किए। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। DR मेहता साहब एक विषय था, आपने बात छेड़ी है, क्या असर क्या होता है वो एक निवेदन करो, फिर आप आगे कंटिन्यू करना। नक्सल एरिया में साहब हमारे एक मैनेजर हैं व्यास जी, NB व्यास, मुंबई के, धाकड़ आदमी है, फलोदी के है, आप जानते होंगे शायद। तो वो कैंप करते हैं नक्सल एरिया में, गढ़चिरौली में, जो गढ़ है महाराष्ट्र में नक्सल का। तो मैं जाना चाहता था, तो मैंने कहा व्यास जी मैं आ रहा हूँ कि साहब 3 दिन हो तो आना, कि नागपुर आओगे, वहां से 5 घंटे लगेंगे, 1 दिन तो रुकोगे। मैंने कहा 2 दिन है कि नहीं, फिर अभी नहीं, अगली बार आना। मैं पूछा व्यास जी बताओ कि आपको क्या तकलीफ होती है वहाँ? साहब तकलीफ? और मैं नक्सल एरिया है ना, डर नहीं लगता है? कि किसका डर साहब? नक्सल लीडर से आके हमसे पूछता है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? साहब इतना इम्पैक्ट है। तो मैं ये निवेदन करूं कि वो जो जॉय और वो जो रिलेशनशिप, इंसान है तो इंसानियत तो होगी ना हर एक में, भरोसा होना चाहिए कि इंसानियत का काम कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को वहां कोई साथ नहीं लेते हैं,
अब मेरी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं। नातेवाला एक संस्था से कांटेक्ट हुआ है, पर्सनली बिस्सा साहब कह रहे हैं मैं भी चलूंगा, तो हम दोनों जाएंगे वहां। और वहां नातेवाला में साहब जो सबसे खतरनाक एरिया है नक्सलाइट्स का, और हम बिल्कुल निश्चित हैं कौन मारेगा, और मरने का एक्सीडेंटल डेथ तो यहाँ भी हो जाए, जयपुर में चलते हुए होगी। तो बिस्सा साहब आपकी प्रॉमिस है ना? सर मेरी भी आपसे प्रॉमिस है कि चलेंगे साथ। सर मेरी 2 जगह की प्रॉमिस है, एक तो पाकिस्तान चलने की और एक नक्सल एरिया में चलने की। अभी आप कुपवाड़ा जाके आ गए क्योंकि वहां पर कम ही लोग जा सकते थे, करके आ गए अभी आप। सर मैं निवेदन ये करूंगा कि अभी बहुत सारे लोग इसके अंदर हैं जो हमारे साथ में कार्य कर रहे हैं, और जो कुछ डी.आर. मेहता साहब ने सबको बात बताई है, केवल एक ही उद्देश्य के साथ काम करते हैं सर खुद ही, कि कीप ए ग्रीन ट्री इन योर हार्ट, probably a singing bird will come, return and rest there. कभी अपने दिल में वो कम से हरा पर रखें, कभी कभी कोई भटकता पंछी आ जाए रेस्ट के लिए तो वापस न जाना पड़े। तो कामे दुखत तप्तानाम प्रणनाम आरती नाशनम। जो सर ने सबके नाम लिए और बताया कि ये काम सब सहयोग कर रहे हैं, मैं एक लाइन कहूंगा, आप सभी ने भगवान कृष्ण का वो चित्र देखा होगा जिसमें वो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, और एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया हुआ है, और साथ में ग्वाल बाल खड़े हैं जो लकड़ियां ऊंची कर करके और सोच रहे हैं कि हम भी उनको सहयोग दे रहे हैं। वो लकड़ियां ऊंची करने से वो गोवर्धन पर नहीं उठा हुआ है, वो तो भगवान कृष्ण ने अकेले ही उठा रखा है। तो भगवान श्री डी.आर. मेहता साहब ने बात करिए, बात की तरह अंगुली पर सारा उठा रखा है, तो सब लोग उनकी छाया के नीचे खड़े हैं। मैं एसोसिएशन की ओर से, मेरी ओर से, सभी ओर से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एसोसिएशन की अभी तक का बेस्ट लेक्चर आपने किया और सबको अपने जॉय ऑफ गिविंग और कंपैशन की प्रेरणा दी। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत आभारी हैं डी.आर. साहब हम आपके।